Hello students, I welcome you all on my YouTube channel Innovative Studies. Here we discuss all types of doubts regarding maths, science, and we all discuss those problems that faced by an average student when he enters in the class of 9th and 10th. I personally feel very motivated when students write comments regarding the chemical reactions. Sir, how do these chemical reactions take place? I personally feel very motivated. It means a lot to me. In my previous video, how do chemical reactions takes place, part 3, a student commented and puts a doubt. Sir, tell me how barium chloride reacts with aluminium sulfate. So first we entertain this doubt, and then how do chemical reactions take place, part 4, and then the chemical reactions topic is completely fulfilled. Okay, aluminium sulfate. Firstly, we write the chemical formula of barium chloride. How to write chemical formula of barium chloride? Firstly, we write the symbol of barium and then chloride. Okay, as I discussed earlier in my previous video, that the barium is a bivalent cation. Barium is a bivalent cation and chlorine is a monovalent anion. So the valency of barium is +2 and chlorine is -1. Okay, then cross multiply followed by the cross multiplication method. Here's the becomes barium chloride. How it reacts with aluminium sulfate? Same procedure followed by this. Write aluminium, right below the valency of aluminium, write sulfate as we discussed in the previous video. What is sulfate? SO4 is its symbol. It is a bivalent anion, so that its valency is -2. Then followed by the cross multiplication method, its formula becomes chemical formula Al2SO4 thrice. Okay, Al2SO4 thrice. Now how these reactions takes place? Barium chloride reacts with aluminium sulfate. Okay, now we have break it out in cations and anions. First one is cation and second one is anion. First one is cation and second one is anion. Now first cation reacts with the second anion. Okay, so barium, below barium valency, sulfate SO4, not write this, its sulfate valency, then cross multiplication, hence BaSO4 plus this aluminium reacts with chlorine. How it reacts? Aluminium valency, chlorine valency, followed by the cross multiplication method, AlCl3. Okay, it is a doubt. Is that clear? Now we will start our video of last types of chemical reactions. आज हम उसकी लास्ट टाइप करने जा रहे हैं अपनी केमिकल रिएक्शंस पार्ट 4 में. वो क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. फर्स्ट टाइप इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Displacement reaction means in which a more active metal displaces the less active metals. मैं आपको उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ. जैसे आप दो मित्र हैं, आप अपने दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं. दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं और आपकी दोस्ती बहुत ही पक्की है, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर है. और बीच में से कोई तीसरा आता है, वो क्या करता है? आप दोनों की फ्रेंडशिप में क्या डाल देता है? झगड़ा करवा देता है आपका. और क्या करता है? उसके साथ खुद दोस्ती कर लेता है और आपको बाहर निकाल देता है. मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ. जैसे Fe2O3 की जब मैंने एल्युमिनियम से रिएक्शन करवाई तो क्या हुआ? क्या बन गया? Al2O3 प्लस Fe. यहाँ पे देखो Fe का मतलब हो गया आयरन. आयरन और ऑक्सीजन आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त थे. एल्युमिनियम आया, इसने दोनों के बीच में क्या करवा दिया? झगड़ा करवा दिया, एक दूसरे को दूर कर दिया. और क्या है? उसने ऑक्सीजन के साथ खुद कंपाउंड बनवा लिया और आयरन को क्या है? बाहर निकाल दिया. इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एक एग्जांपल और लेते हैं. जैसे आयरन की मैंने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या बना? FeSO4 प्लस कॉपर. वही फिर देखते हैं
कॉपर की सल्फेट के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती थी, तो क्या हुआ, आयरन इनके बीच में आया। आयरन इनके बीच में आया क्यों? क्योंकि आयरन एक एक्टिव मेटल है। क्या है ये? एक्टिव मेटल। ये इन दोनों के बीच में आया और कॉपर को बाहर निकाल दिया और खुद उसके साथ उसने कंपाउंड बना लिया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाली बात ये है, आपको कैसे पता चलेगा भी ये इसको डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा। उसके लिए हमें एक रिएक्टिविटी सीरीज को हम ट्रिक से याद करेंगे। वो ट्रिक की ये है, पानी से अलमीरा कॉर्नर झुक गया, इतना टेढ़ा लगता है, क्लास सहम गई। ये ऑर्डर है रिएक्टिविटी सीरीज का। ओके, फिर से हम रिपीट करते हैं। पानी से, एक मिनट, यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज हम एक पूरे इस पे पूरे प्रॉपर लिख के बताता हूँ आपको, ऐसे आप बीच में कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए, पानी से क्लास में, पानी से क्लास में अलमीरा कॉर्नर झुक गया, इतना झुक गया, इतना टेढ़ा टेढ़ा लगता है, क्लास सहम गई। ये हमारे पास ऑर्डर है रिएक्टिविटी सीरीज का। आप इस ऑर्डर को देखिए। अब मैं बताता हूँ। P फॉर पोटाशियम, पोटाशियम, ओके। S फॉर सोडियम, सोडियम। C फॉर, क्या आएगा C फॉर बताओ? कैल्शियम, ओके। M फॉर आ गया मैग्नीशियम। Al फॉर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। C फिर आ गया, इसका है कार्बन। झुक का Z है जिंक। इतना टेढ़ा लगता है, क्लास सहम गई। इतना का I हो गया आयरन, ये हो गया टिन T, L का लेड, H आ गया हाइड्रोजन। क्लास में ये फिर C आ गया। एक C ऊपर आया था, एक C नीचे आया, एक C नीचे भी आया। ओके, इसमें अब आप कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज नहीं होना आपने इसमें। सैम का S हो गया सिल्वर, G हो गया गोल्ड। अब यहां पे देखो, Cl कैल्शियम आ गया, कॉर्नर का C आ गया कार्बन, और लगता है क्लास सहम गई। यहां पे एक Cl और आ गया क्लोरीन। ओके, आप ये देख सकते हैं। ये इनका जो ऑर्डर है रिएक्टिविटी सीरीज का वो ऐसे है। जो ऊपर वाला है पोटाशियम, ये सबसे मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव। और जो नीचे है, यहां से इंक्रीजिंग लेवल, इंक्रीज हो रहा है रिएक्टिविटी सीरीज, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर जाते हैं। रिएक्टिविटी का जो लेवल है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये भी एक ट्रिक है, इसको आप अपनी नोटबुक्स पे नोट कर लो। चलो, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ओके, इसको नोट कर लिया। चलो, जैसे मैंने आयरन की रिएक्शन किसके साथ करवाई? कॉपर सल्फेट के साथ। अब हमें ये देखना है, हमने ये जो आयरन है इन दोनों दोस्त के बीच में झगड़ा करवा सकता है या नहीं? झगड़ा वही करवाएगा जो एक्टिव मेटल होगा। अब देखो, रिएक्टिविटी सीरीज में हम कॉपर देखते हैं और आयरन देखते हैं। कॉपर कहाँ है? कॉपर यहाँ पे कॉपर है, क्लोरीन नहीं, कॉपर।
रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर कहाँ है, ये रहा कॉपर, और आयरन कहाँ पे है, ये रहा आयरन। अब हमें ये पता है जो रिएक्टिविटी सीरीज में जितना ऊपर होगा वो उतना क्या होगा, एक्टिव मेटल होगा, और उतना वो दूसरे को क्या कर देगा, डिस्प्लेस। इसका मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में जो आयरन है कॉपर के ऊपर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हुआ ये जो आयरन है इन दोनों को बीच में क्या करेगा, दोस्ती को झगड़े में तब्दील कर देगा और कॉपर को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। एक एग्जांपल और करते हैं, जिंक की रिएक्शन मैंने करवाई कॉपर सल्फेट से। अब फिर से वही रिएक्टिविटी सीरीज को हम देखेंगे। अब हम ये देखेंगे अगर जिंक जो है रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, इन दोनों को बीच में से तोड़ देगा और जिंक सल्फेट के साथ अपना कंपाउंड, हम अब जिंक ढूंढते हैं, जिंक ये रहा, ये हैश डाला मैंने, जिंक ये रहा, अब कॉपर कहाँ पे है, ये रहा। इसका मतलब जो है जिंक जो है वो कॉपर से ऊपर लाई कर रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में, इसका मतलब ये इसको क्या कर देगा, डिस्प्ले। ये क्या बन गया, जिंक सल्फेट और कॉपर को बाहर निकाल दिया। इस टाइप को रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन a more active metal displaces the less active metal from its compound as we see. Okay, now second type of reaction हम करते हैं। ये सभी रिएक्टिविटी सीरीज के पे बेस्ड है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगली जो हमारी रिएक्शन है उसका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस हीट एनर्जी इज गिवन आउट। इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में जब कोई दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। जैसे आपने अब तो हमारे जो है दीवारों पर पेंट होने शुरू हो गई। जब पेंट नहीं हुआ करते, जब दीवारों पे कली हुआ करती थी, तो वो क्या करते थे, कली को कुछ देर के लिए चूना होता है वो कली, उसको क्या करते हैं, पानी में कुछ देर के लिए डबो कर रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी हीट एनर्जी बाहर आती है। हीट एनर्जी बाहर आने के कारण उसका जो पानी का टेम्परेचर है वो भी क्या राइज हो जाता है। आप कभी देखना डेली लाइफ में। ओके, चलो अब हम करते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन हमारे पास क्या है, सॉलिड। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, ऑक्सीजन के साथ। तो ये क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये भी गैस है, और साथ में क्या है, हीट एनर्जी निकली बाहर, हीट एनर्जी लिबरेट हुई, हीट एनर्जी साथ में बाहर निकली। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास एक बर्निंग कैंडल है, हमारे पास। कैंडल को जब हम जलाते हैं, जैसे हम कैंडल को जलाते हैं, उसमें इस कैंडल की वैक्स में क्या होता है, कार्बन। अब हमें पता है कैंडल तभी जलेगी अगर इसको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगी। तो इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड तो बन गई गैस, साथ में जब कैंडल जली, जब हम उसके ऊपर ऐसे हाथ रख के देखते हैं तो हमें क्या लगता है, हीट भी निकल रही है ना, साथ में हीट एनर्जी निकल रही है। ये इसकी एग्जांपल है। एक एग्जांपल और करवाता हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, वो ये है, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है तो उसके में क्या बनता है, साल्ट और वाटर बनता है, साथ में हीट एनर्जी भी लिबरेट होती है। जैसे HCl की मैंने NaOH के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या बना, NaCl बना प्लस वाटर बना, हमें पता है साल्ट वाटर, प्लस हीट एनर्जी लिबरेट हुई, साथ में हीट एनर्जी भी क्या है, लिबरेट हुई, हीट एनर्जी बाहर को आई। ये होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन हीट एनर्जी इज गिवन आउट। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। वहां पे क्या करते थे, हीट एनर्जी क्या थी, गिवन आउट होती थी, बाहर में आती थी। इसमें क्या होगा, हीट एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन हीट एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड। अब्जॉर्ब्ड का मतलब अब्जॉर्ब होती है, अब्जॉर्ब। जैसे N2 एक क्या है, गैस है, O2 भी क्या है, एक गैस है। हमें पता है एटमॉस्फेयर में दोनों प्रेजेंट होती है, तो इन दोनों की रिएक्शन ये 2NO तभी बनेगी जब ये एटमॉस्फेयर से क्या करेंगे, हीट एनर्जी को क्या करेंगे, ऑब्जॉर्ब करेंगे, अब्जॉर्ब्ड, ओके, तभी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। जैसे एक रिएक्शन और करके दिखाता हूँ आपको, जैसे CaCO3 है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा,
हम इसको में हीट एनर्जी देंगे। हीट एनर्जी क्या है? ऑब्जर्व। ये देखो, ये डेल्टा का निशान क्या है? हीट दे रहे हैं हम इसको, हीट एनर्जी दे रहे हैं और ये ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये किस में कन्वर्ट हो गया? CaO प्लस CO2। ओके, ये हमारी जो एग्जांपल्स हैं ये हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस की एग्जांपल हैं। अगली हम जो रिएक्शन करने जा रहे हैं वो रिएक्शन है हमारे पास डीकंपोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अ कंपाउंड्स ब्रेक्स इनटू 2 or more compounds. In this type of reactions a compound breaks down into 2 or more compounds. For example, PbNO3 twice है, ये अब किस में स्प्लिट हो जाएगा? PbO प्लस NO2। इसमें ये क्या है? कंपाउंड क्या हो जाएगा? लिबरेट, ब्रेक डाउन हो जाएगा। एक बड़ा कंपाउंड था, ये 2 छोटे कंपाउंड्स में क्या है? ब्रेक हो गया। इसको बैलेंस कर लेंगे हम। ओके, चलो ये थी हमारी इसकी एक और रिएक्शन। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन में भी एक आती है, जैसे हमने अभी एग्जांपल की कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम जब ये हीट करने पे होगा, ये डेल्टा का निशान जो मैं डाल रहा हूँ ना, इसका मतलब ये हीट है। हीट होगी तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, ये हीट एनर्जी पे हमारे पास क्या होगा? ये डिकम्पोज आ बिगर कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉल कंपाउंड्स। ओके, चलो हमारे पास ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। अगली रिएक्शन की ओर पे अब बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है? हमें नाम से क्लियर हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल, ये माइनस का सब्ट्रैक्शन का साइन क्यों डाला है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी में हम ऑक्सीजन ऐड कर दें तो उसकी क्या हो जाती है? ऑक्सीडेशन। हमने इसकी एग्जांपल पहले भी की हुई है, जैसे कॉपर की मैंने रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा दी तो ये क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। तो ये क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। ये देखो, इसके पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी, जैसे ही हमने इसके साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई तो इसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन। तो ये क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। ओके, उसी तरह Mg की जैसे मैं O2 से रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा? MgO। ये देखो, यहाँ पे Mg के साथ ऑक्सीजन नहीं थी, जैसे ही हमने इसकी रिएक्शन करवाई O2 के साथ तो क्या बन गया? MgO। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जब हमने Mg की O2 के साथ रिएक्शन कराई, MgO हमारे पास कंपाउंड बन गया। कैसे बना? Mg पहले हमारे पास क्या था? अकेला Mg था। इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के इसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन। चलो अब हम अगली रिएक्शन करते हैं, उसका नाम है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन, ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, रिडक्शन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होगा? इस रिएक्शन में क्या होगा? जैसे उसमें क्या होता था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें उसका ऑपोजिट करना है। इसमें क्या होगी? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल को, फॉर एग्जाम्पल जैसे जिंक ऑक्साइड की मैंने रिएक्शन करवा दी कार्बन से, तो क्या बन गया? ये जिंक बाहर निकल गया, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। इसमें क्या देखो, यहाँ जिंक के साथ ऑक्सीजन लगी हुई थी, हमने क्या कहा था? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जिंक अकेला रह गया जब इसकी रिएक्शन करवाई हमने, तो इसका मतलब जिंक में जो ऑक्सीजन है वो क्या हो गया? रिमूव हो गया। तो क्या बन गया? अकेला जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड साथ में। उसी तरह से कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हमने करवाई H2 से, तो क्या बना? अकेला कॉपर, साथ में क्या बन गया? वाटर। ये देखो, कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन अटैच थी, जैसे ही इसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, एडिशन ऑफ क्या है? हाइड्रोजन की एडिशन हुई, तो इसमें क्या है? कॉपर बाहर निकल गया, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया और साथ में क्या बन गया? वाटर। चलो, ये थी हमारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसका हमारा सभी पार्ट्स कवर हो चुके हैं, सभी पोर्शन हमारा इसका खत्म हो चुका है। इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ, आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बतानी है क्या है वो, उसके आंसर लिख के बताने हैं। फॉर एग्जांपल KClO3 मिक्स रिएक्शंस होंगी इसमें। KClO3 को जब हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा? ओके। और दूसरी है NaOH की जब मैं H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाऊंगा
तो क्या होगा, और ये किस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की मेरे पास एग्जांपल है। ओके, और ये किस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की मेरे पास एग्जांपल है, ये आपको ये मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। और ये रिएक्शन भी आप घर पे ट्राई करके देखना, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। ओके, ये रिएक्शन आपको करके दिखानी है, होमवर्क है। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल इनोवेटिव स्टडीज़। ये आपको कमेंट सेक्शन, ये आपका होमवर्क है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल इनोवेटिव स्टडीज़। आई पर्सनली फील वेरी मोटिवेटेड व्हेन स्टूडेंट्स कमेंट्स मी। ओके, अगली बात जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ वो ये है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए अगली मैं कौन सा टॉपिक उठाऊँ 9th-10th का, जो बच्चों को फील होता है भी ये टॉपिक तो हमसे नहीं हो पाएगा, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, तो मैं अगली वीडियो उस टॉपिक पे बनाऊँ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल इनोवेटिव स्टडीज़। Please like, subscribe and click on the bell icon to get the latest notifications from our channel Innovative Studies.